Welcome to Tycoon Global Podcast. Today we have Pooja Garg. She's a skincare expert and an entrepreneur from Delhi, India. So welcome Pooja ji. Thank Welcome you. in Tycoon Global. So we would like to know more about your journey towards skincare and how you become an entrepreneur. Oh, that's really cool. See, I always love the skin. मतलब, I always feel if you have a good skin, तो nobody can think about bad about you. मतलब आप किसी की स्किन को देखकर ही उसकी एज का अनुमान लगा सकते हो. आई ऑलवेज से कि अगर आपकी स्किन खराब है तो लोग आपसे पूछते हैं आर यू ओके, तबीयत तो खराब नहीं है. बट इफ यू हैव अ गुड ग्लोइंग स्किन तो नोबडी गोइंग टू आस्क यू आर यू नॉट वेल. तो स्किन के लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. येस, बट इस इंडस्ट्री में आना मेरा एक बहुत बड़ी स्टोरी है. मतलब मैं कभी नहीं चाहती थी क्योंकि आई बिलोंग टू very accounts family. Like my brother is CA CPA, my father is general manager for Sanchar Wireless. Everybody was in account section, so I also wanted to be a CA. But when I was in 12th तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस की. तो सब मुझे कहते थे यू डोंट कम इन द पिक्चर खराब हो जाएगी, बिकॉज मैं बहुत बुरी दिखती थी. तो तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री में आना है जहाँ मैं लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाऊँ. एंड आई फील प्राउड राइट नाउ बिकॉज आई ऑलवेज फील कि हमारी इंडस्ट्री जो है, जो लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हम उन्हें कॉन्फिडेंस दे पाते हैं. बिकॉज द वे यू लुक एक्चुअली यू फील कॉन्फिडेंट. एंड नाउ तो यू कैन सी हाउ fast beauty industry is growing. So have you taken any formal education in this? And how do you take up this particular skincare into the whole thing basically? Yeah, I did a cosmetology course from South Delhi Polytechnic of Women, which was recognized by London University. After that, I did my course, some courses from Italy, some courses from Korea, and some courses from Thailand also. So yeah, I did multiple courses, and till the time I'm reading. That's really great. So what all things are covered? Like what all aspect you cover when it comes to skin care and what all things you do basically? फर्स्ट तो मुझे लगता है कि आज भी शायद इंडिया में लोगों को ये सिखाना है कि स्किन केयर इज रियली इम्पॉर्टेंट. पीपल आर थिंकिंग ओ अच्छा हम फेस वॉश लगा लेते हैं, दैट्स ओके सफिशिएंट. तो अभी हमें बहुत सारी एजुकेशन रिक्वायर्ड है बिकॉज इंडिया अभी भी बहुत पीछे है. जब मैं किसी से बात करती हूँ आप अपने दोस्तों में से, या कि शाम को क्या करना होता है, जस्ट फेस वॉश करो और सो जाओ, तो अभी तक लोगों का वो वाला व्यू है. बट या ऑन द सेम टाइम कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं. दे ऑलवेज यूज़ देयर मतलब मॉर्निंग रिजिम एंड इवनिंग रिजिम. तो हमें मुझे लगता है एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है स्किन केयर के अंदर, जहाँ हम लोगों को बता पाएंगे कि हमें मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है. क्योंकि मॉर्निंग इज ऑलवेज कि आपने एक रिजिम फॉलो किया, बट व्हेन यू डू एवरीथिंग इन द इवनिंग दैट इज अ केयर. That's really important. लोग मेकअप करके आते हैं, they don't wash makeup and they just sleep कि I am very much tired. तो it is so harmful for the skin. Skin cannot breathe if you applied a makeup. तो I always believe कि आप रात को अपनी केयर बिल्कुल इग्नोर ना करें. Use makeup remover products, either it is a balm or micellar water, whatever is your favorite. My favorite is always balm. Makeup remover balm, and then cleansing, which is very much required in the evening. Either you are doing makeup or not, because अगर आपने मेकअप नहीं किया तो आपने सनस्क्रीन तो जरूर अप्लाई किया होगा. तो सनस्क्रीन रिमूव करने के लिए भी यू नीड अ गुड क्लेंजर. तो यू नीड अ डबल क्लेंजिंग, देन अ गुड टोनर सीरम, and your last is a night cream. That's really important. So you have 3 companies. Could you please talk about those companies and what they are into basically? Okay, I just started these brands from last 2 years back. First, we started with the online brand, which is the True Therapy, which is available on Amazon, Mantra, on our e-commerce website, which is a dermat brand where you can find a lot of serums and face washes and sunscreen. So we offered a variety of serums like retinol, whitening के लिए Arbutin, Transamic, for melasma or pigmentation. Then we have a AHA, BHA, different kind of face washes, vitamin C, glycolic. Nowadays, if you will see a lot of active ingredients based companies in the market, because in COVID, influencer did a really good job. They educated people, but yes, sometime it is on wrong direction also. Yeah, they told people ki what we should use, how we should use.
So yes, market is booming right now with the active ingredients, and we are working on the active based company only. So we have a lot of active based products which is available on online. Then we have two professional brand. One is Pedicam, which is a very different concept which I was making from last 4 years. I wanted to launch facial for feet and I launched it just last year. That's a very different concept. अभी तक आप लोगों ने सुना होगा pedicure, but we are talking about facial, foot facial. It's not a skin facial, it's a foot facial. We used all the actives which we are using on the face products. The same we used in the feet also, मतलब for foot facial also. So you can see a very drastic change in the feet in a one sitting only. मतलब आपने आज foot facial कराया तो आपका result कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा. तो that kind of products we have in a Pedicam. Then third brand is Beautiful. I keep this name. आप सोच रहे होंगे कैसा brand name है ना? Is Beautiful because I always say everyone is beautiful. We are here to make you more beautiful. क्योंकि हम आपको खूबसूरत बना ही नहीं सकते. You are the most beautiful creation of the God. But yes, we can enhance your beauty. तो उसी से इंस्पायर होके मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है Is Beautiful, where we offer different kind of categories like intimate products, body facials, skincare treatments for melasma, pigmentation, foaming, and mini facials, and some of the very beautiful retail products. So you are an entrepreneur also, a single mother also, and also into influencer. Yeah. So how do you basically maintain balance, life and your work? Being a single parent or single mother, it's a big challenge to, balance your corporate life and your motherhood. But yes, I always enjoy my motherhood. Yeah, but sometime when you are in the corporate section, तो आपको थोड़ा बहुत compromise करना पड़ता है. But yes, I always try to give my most of the time my kid also. तो आई ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस कि जब उसका टाइम है तो उसका है, जब माई बिजनेस टाइम है देन बिजनेस टाइम. अगर बीच में कभी ऐसा डे होता है जब मेरा बिजनेस टाइम इज गोइंग ऑन एंड सडनली आई केम टू नो ओ शिट टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर माय सन, तो दैट डे इज टफ फॉर मी because he will say you will not go and I need to go. Otherwise it's easy to manage if you are in love with your, for mother, if you have a son, I have a son, तो he is my first love, like तो आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है नहीं. your kid is now very cooperative, he can also understand कि mother के challenge बहुत हैं. तो I am a blessed mother in that manner because I have a very smart, intelligent boy. So it's easy to manage. So lots of women and men have seen they do lots of mistakes when it comes to skin care. Yeah. So you can just talk about something which you really want to change or you want to rectify. I will really यहाँ पर मैं एक जोक सुनाना चाहूँगी कि वुमेन शायद थोड़ी कम मिस्टेक करती हैं पर मेन ज़्यादा करते हैं. और वो कैसे होता है कि मेन कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं जो उनकी वाइफ यूज़ कर रही हैं, और ब्रदर्स कौन सी यूज़ करते हैं जो उनकी सिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं. दे थिंक ओ शी इज़ यूजिंग बेस्ट वन, तो हमें ना चूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट नाउ नो, नॉट एट ऑल, मतलब ऑल मैसेज फॉर ऑल बॉयज़, either they are husband or brother or son, every skin needs a different product. Maybe your sister's skin, maybe your wife's skin or your mother's skin is oily. And they have a pigmentation, maybe they are using exfoliating product and you are young. You don't need that, you need only hydration product, so it will not work for your skin. So this is the biggest mistake. Whenever I go to my relative house or my friend's house, they said I am using the same one which my wife is using. So I got to know ki, oh, that is the reason you are getting acne now, because maybe sometime her skin is dry, so she is using some hydration product. Your skin is oily, you need to use salicylic, but she is using retinol, or she is using hyaluronic, some different kind of actives. So I always believe कि you need to know कि what ingredient your skin required. और अगर हमें कभी कभी समझ नहीं आता तो जय हो गूगल बाबा की. Go on the Google and search कि what product you should use actually. So पूजा, जब लोग ट्रैवल करते हैं lots of time we have seen that they are not able to take proper care of skin. तो उस केस में आप क्या एडवाइस करेंगी? How do they take care of skin, men and women both? Yeah. And what do you recommend?
आई ऑलवेज बिलीव जब आप ट्रैवल करते हो तो भी आपको उतना ही रिक्वायरमेंट है स्किन का टेक केयर करने का, तो ऑलवेज मेक योर ट्रैवल किट वेरी सिंपल. वी कैन नॉट अवॉइड सनस्क्रीन, दैट इज रियली मस्ट. आई ऑलवेज फील बिकॉज आज की डेट में पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था CTM, आपने भी सुना होगा, विच इज़ अ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर. शुरू से हर कंपनी आपको वही पढ़ाते हुए आ रही है, बट नाउ इज अ कॉन्सेप्ट चेंज. नाउ क्लेंजिंग, टोनर, सिरम, T के साथ एक और एस लग गया है, M के साथ मॉइस्चराइजर एक और एस लग गया विच इज अ सनस्क्रीन. तो विच इज अ रिक्वायर्ड, मतलब आप कहीं भी हो, कुछ भी मिस करो, बट ये स्टेप्स आप मिस नहीं कर सकते बिकॉज व्हाट क्लेंजर वी आर यूजिंग दैट इज ऑलवेज डीप क्लेंजर. तो उसके बाद पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड पोर्स को मिनिमाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो जब भी पोर्स ओपन होते हैं तो वहां से हम क्लाइंट की स्किन को पहचानते हैं, और स्किन अगर उनकी 30 मतलब उनकी एज जो है अगर 30 है तो दे लुक लाइक अ 40. Open pores, sagging pores, it is not good for the skin. So you should apply toner every time, or you can choose a shortcut because nowadays a lot of products available in the market which is a toner serum. तो सिरम में कॉम्बिनेशन है टोनर का, एंड माई कंपनी ऑल्सो मेक द सेम, इज ब्यूटिफुल टोनर सिरम. एंड सनस्क्रीन में हम मॉइस्चराइजर एड ऑन कर देते हैं, तो योर स्टेप्स अब कम है. क्लेंसर, टोनर सिरम इज अ 1 step एंड सिरम मॉइस्चराइजर इज अ सनस्क्रीन इज अ 1 step. तो नाउ आपके पास मॉइस्चराइजर भी हो गया, टोनर सिरम भी हो गया एंड क्लेंसर भी हो गया. एंड इवनिंग में आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, प्लीज यूज डबल क्लेंजिंग विद आपका नाइट रूटीन, मतलब जो भी आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं एंड टोनर सिरम, तो दैट इज रियली मस्ट. एंड अगर आप कहीं बीच पर जा रहे हैं तो हम सोचते हैं हमने सुबह सुबह सनस्क्रीन लगा लिया एंड नाउ तो अब हम सन में जाके खड़े हो सकते हैं, नथिंग विल हैपन. नो बॉस, ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू रीअप्लाई द सनस्क्रीन आफ्टर एवरी 2 hours. सम टाइम क्लाइंट्स हैज अ कंप्लेंट, अगर मैंने मेकअप कर लिया तो मैं अब दोबारा सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करूंगी. तो लॉट ऑफ स्प्रेज आर इन द मार्केट विच यू कैन अप्लाई ऑन द मेकअप्स ऑल्सो. एंड जो मेरा फर्स्ट ब्रांड है विच इज अ ट्रू थेरेपी, जो कि ऑनलाइन ब्रांड है, वेयर वी ऑफर अ मेकअप स्प्रे, मतलब इट्स अ सनस्क्रीन स्प्रे रीसेटिंग. आप 2 घंटे बाद, चाहे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, दे कैन अप्लाई ऑन द फेस एंड यू कैन सी कि आपने दोबारा सनस्क्रीन कोट कर लिया, तो आपकी स्किन बर्न नहीं होगी. क्योंकि ये जो एक मिथ है ना कि हमने मॉर्निंग में एक बार सनस्क्रीन लगा लिया, आप हमें फुल डे रिक्वायर नहीं है. नो, कोई भी सनस्क्रीन हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, किसी भी SPF वैल्यू का हो, वो 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता. सो पूजा, आजकल ट्रेंड में है कोरियन ग्लास स्किन फेशियल. Okay. बताएं उसके बारे में प्लीज. जी, मुझे ये नहीं मालूम है जब मैं इस बारे में बोलने वाली हूँ तो मेरे कितने क्लाइंट मुझसे नाराज होने वाले हैं, बिकॉज पर्सनली आई रियली वांट कि अगर आप कराना चाहते हो, गो टू डर्मैट एंड डू इट, बट स्टिल बिकॉज उसमें हम स्किन को पील करते हैं, यू नो, तो इट इज़ नॉट रियली गुड फॉर द स्किन. अगर आप को बहुत जल्दी और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये ट्रीटमेंट कराना, देन यू कैन गो विद, बट आई रियली, मैं इसको रेफर नहीं करूंगी. मतलब अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे रोज DM करते हैं कि पूजा मैंने कोरियन ग्लास स्किन फेशियल कराया था, मेरी स्किन पील हो गई है, बहुत सेंसिटिव हो गई है. क्योंकि उसके बाद आप धूप में नहीं जा सकते हो. ये जो हम लाइट्स पे बैठे हैं या मेकअप के लिए जो लाइट्स यूज करते हैं, वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, क्योंकि लोगों को अभी तक सनस्क्रीन भी रेगुलर लगाने की आदत नहीं है. एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको. ये उसी तरीके से है जैसे बचपन में, अगर हम थोड़े से सालों की पहले की बात करें, तो जब कोई गिर जाता था तो एक स्किन पिंक पिंक आ जाती है सर, क्योंकि पहली स्किन पील हो जाती है. तो यही आपका कॉम्प्लेक्शन है, वो इतना पील करते हैं आपकी स्किन फेयर दिखती है. बट उसके बाद की स्टोरी, डॉक्टर्स उस समय उन्हें लगता था कि चोट को हील करना जल्दी जरूरी है, मार्क्स पड़ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या कहते थे, चोट को खुला रखिए जल्दी ठीक हो जाएगा. और हम रखते थे तो हम सबकी बॉडी पे छोटे छोटे स्कार जरूर होंगे, खेलते हुए गिरे होंगे, कहीं से चोट लग गई होगी. बट आजकल डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, कवर करके रखिए जिससे वो निशान ना पड़े. तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा सनस्क्रीन अप्लाई कराते हैं जो नॉर्मल क्लाइंट्स नहीं कर पाते, और कईयों की स्किन इतनी सेंसिटिव है. उसके अलावा एक छोटी सी बात, और जहाँ मैं इन्फ्लुएंसर्स की तारीफ करती हूँ वहाँ मुझे प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जैसे कुछ क्रीम्स हैं मेलाफेट जो डर्मैट्स देते हैं आपको, वो लगाने के लिए जिससे पिगमेंटेशन क्लीन हो जाती है, पर उनका टाइमिंग पीरियड होता है कि आप इतने टाइम के लिए लगा सकते हो. पर जो हमारी एक ऐसी ऑडियंस है जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं है, दे आर बाइंग दैट एंड दे आर अप्लाइंग ऑन द फेस फॉर द फुल डे. तो उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है कि उनके ऊपर अगर हम कुछ भी ऐसा ग्लास स्किन फेशियल जैसा करेंगे तो उनकी स्किन तो खत्म हो जाएगी.
तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग ऑन द स्किन आफ्टर डूइंग द ग्लास स्किन फेशियल. तो आई तो रियली से कि अगर आपको नहीं ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से जा सकते हैं, तो यू गो विद द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स. दैट्स रियली गुड. सो पूजा जी, अभी देखा गया है कि लॉट्स मेनी इन्फ्लुएंसर दे आर प्रमोटिंग डिफरेंट ब्रांड्स. या तो होता है क्या है कि ये मैं ही कंफ्यूज हूँ या फिर ये लोग भी Audience भी कंफ्यूज, है. ऑडियंस भी कंफ्यूज आती है कई बार कि कौन सा ब्रांड किसके लिए, कौन इन्फ्लुएंसर कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है. somehow मैं उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ जहाँ लिखा जाता है नॉट स्पॉन्सर्ड, यू नो, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो स्पॉन्सर्ड वाले ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अगर वो स्पॉन्सर वाले भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. If my skin is sensitive or my skin is a oily prone या my acne prone skin, तो I will not talk about that product जो मेरी स्किन को सूट नहीं करेगा. मतलब मैं बात कर सकती हूँ लेकिन लगा के दिखा नहीं सकती कि आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. जैसे अभी बहुत बड़ा फेमस हुआ था एक रील जिससे वायरल हुई थी एंड उस पे लोगों ने बहुत सारी गलत बातें की थी क्योंकि शी वाज यूजिंग आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट. बट उसको एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें वो सिर्फ डर्मैट प्रोडक्ट ही यूज कर सकते हैं. शी कैन नॉट यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड लॉट ऑफ डर्मैट्स डिड अ ट्रीटमेंट फॉर हर. मतलब अप्रोक्सीमेट 2 साल लगे उसकी स्किन को ठीक करने के लिए. बट उसने रील में क्या दिखाया, जो स्किन को ठीक करने से पहले का था एंड देन शी इज यूजिंग द प्रोडक्ट जो भी कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया है एंड फिर उसके बाद वो स्किन ठीक दिखा रहे हैं. तो मुझे लगता है ऐसे मिथ नहीं दिखाने चाहिए, मतलब लोगों को गलत डायरेक्शन पे नहीं लेके जाना चाहिए. दिस इज अ हार्मफुल. और यही हमारे सोशल मीडिया के थोड़े से यू नो साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं. लोग सोचते हैं उनकी स्किन पहले से यहाँ ऐसे अच्छी हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है. स्किन केयर इज अ जर्नी जिसको आपको तय करना है और रातों रात कोई मैजिक नहीं हो सकता. आई ऑलवेज बिलीव जैसे हम अपने बच्चे की आप जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और हम उनकी मॉम से जाके, मतलब उनकी मैडम से जाके बोलेंगे कि मैं होमवर्क नहीं कराऊंगी मैम, आप क्लास वर्क करके उसे नेक्स्ट क्लास में पहुंचा दीजिएगा, तो मैम क्या बोलेंगी, अपना बच्चा आप घर ले जाइए. राइट. तो सेम आई ऑलवेज फील हमारे क्लाइंट्स को, ऑडियंस को अपना होमवर्क वो है जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, और क्लास वर्क किसी अच्छे सलॉन्स में जाकर ट्रेन टेक्नीशियन से या डर्मैट्स के पास जाके अपनी स्किन के लिए ट्रीटमेंट लेंगे, देन यू विल गेट द पासिंग रिजल्ट्स. बट येस, स्किन केयर इज जर्नी, यू शुड एंजॉय. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मॉर्निंग में आपने किया और शाम को आपको रिजल्ट नजर आ जाए. मैंने पीछे एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था जिसमें ये था, प्रोडक्ट यूज करने से रिजल्ट आता है, खरीदने से नहीं. क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद के रख देते हैं अपनी शेल्फ पे, जहाँ भी मेरी यू नो सब चीजें मैं रखती हूँ, तो उससे रिजल्ट थोड़ी ना आने वाला है. प्रोडक्ट यूज करने से आता है. और किसी भी प्रोडक्ट को जब हम यूज करना शुरू करते हैं, यू नीड टू गिव मिनिमम 2 months टू दैट प्रोडक्ट. यू कैन नॉट कीप चेंजिंग द प्रोडक्ट्स. ओ ये प्रोडक्ट मुझे 6 दिन में रिजल्ट नहीं दे रहा. नो, एवरी प्रोडक्ट टेक्स टाइम फॉर एटलीस्ट 2-3 months. सो पूजा, अभी हमने देखा है कि लॉट्स ऑफ पीपल मेक some homemade remedies like Yeah. DIY. Yeah. So उसमें आपके प्रोडक्ट्स और जो घर में बनाते हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, और एट द सेम टाइम यही करने के बाद लाइक एट द एंड दे आल्सो विजिट सैलून. Yeah. तो थोड़ा बताइए उसके बारे में प्लीज. सी, मुझे लगता है कोविड में किसी ने भी कोई DIY नहीं छोड़ा होगा, except me also. मतलब because you don't have a cosmetics, so you were using DIY. But यार 4 महीने में मेरे ख्याल से सिर्फ मेरी ही जर्नी ऐसी नहीं थी. बहुत सारे जो हाई एंड लोग हैं, they all said no, I don't want any DIY. क्योंकि ठीक है, हम कहते हैं दादी माँ के घरेलू नुस्खे, यू नो, बेसन और दही मिला के आपने लगा लिया, कॉफी पाउडर बना के लगा लिया, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो आपके स्किन को सूट करेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो वो उनका, आप देखो मार्केट में जब आप जाते हो तो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ये ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए. पर कॉफी पाउडर पे थोड़ी ना लिखा है कि ये नॉर्मल स्किन के लिए है, ये ऑयली स्किन के लिए, ये ड्राई स्किन. कॉफी पीने के लिए ना पीजिए आप उसको, और मुझे लगता है कॉस्मेटिक लगाने के लिए है तो उसे लगाइए, तो एंजॉय कीजिए. तो मुझे लगता है कि DIY कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं फेस के लिए. जैसे बेसन है, स्किन को बहुत ड्राई कर देता है. समटाइम्स हम स्किन पे बहुत बुरे रैशेस देख पाते हैं. लोग लौंग ले लेते हैं, टोमेटो ले लेते हैं. टोमेटो में भी एक AHA है जो सेंसिटिव स्किन पर सूट नहीं करता. या हमने पोटैटो का जूस निकाल लिया, उससे हम पिगमेंटेशन हटाने की कोशिश करते हैं. बट उसके बाद का क्या, उस समय आपको वाइटनिंग दिखती है, पर उसके बाद क्या होता है, आपकी स्किन और ड्राई होनी शुरू हो जाती है. क्योंकि अगेन इट इज काइंड ऑफ पीलिंग, नेचुरल पीलिंग.
और उसको आप उससे नहीं बचा सकते बिकॉज उसके बाद आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी. तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप कर रहे हो दैट इज ओके, बट कॉस्मेटिक इज मोर सेफर फॉर यू, क्योंकि वो माइल्ड करके बनाए जाते हैं और हर स्किन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. हम कुछ और चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये मुझे समझ आए ना आए, क्योंकि एज यू से कि पूजा आप तो एजुकेटेड हो, यू नो कि सैलिसिलिक किसको यूज़ करना है. मैं तो भाई इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या यूज़ करना है. बट हम ये तो बटर पेपर से चेक कर ही सकते हैं ना कि हमारी स्किन नॉर्मल है, हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है. अगर आपकी स्किन ऑयली है, आप बटर पेपर सुबह सुबह उठकर चेक करो तो आपको पता चल जाएगा. ऑयल है तो इट्स ऑयली स्किन, कम है तो नॉर्मल स्किन है, और बिल्कुल ही नहीं आया तो इट्स ड्राई स्किन. तो ये तो एटलीस्ट हम सब चेक ही कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. तो दैट्स अ मोर वाइजर चॉइस एक्चुअली. आई मस्ट से मैं DIY के अगेंस्ट. आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि हर्ब्स होते हैं या फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इंट्रिंसिक होते हैं. हाँ, स्टिल आज भी हम कॉस्मेटिक्स में हल्दी यूज करते हैं. सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोडक्ट टर्मरिक है, एलोवेरा है, बट हम उसे उस लेवल पर यूज करते हैं. वी आर नॉट सेइंग कि हम ये जो DIY के प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करते हैं, पर वो उस हिसाब से उस तरीके से उगाए जाते हैं, यू नो, उस तरीके से बनाए जाते हैं. फिर उनको उसी यू नो रेशियो में हम मिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन, जो से स्किन एक्सेप्ट कर ले. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रॉ, it's really harmful. And now it is so good products in the market. If you are vegan, so see we have a vegan range, botanical extracts, sulfate free, paraben free, cruelty free. So you are very safe to use these products. मतलब you know कोई side effect नहीं है. So in entrepreneurship, you must have seen lots of lows in life. Yes. So let's talk about that. एक तो ये बताइए कि जो आपका इस तरह के लोज आए हैं उसमें आपने कोप कैसे किया और उससे क्या आपको स्ट्रेंथ मिली या क्या आपको लेसन मिला? तो I did मतलब I started my journey from 2000 when I entered in the beauty industry. That time I was doing job, and in 2020 till 20 years I did a job. 20 में after COVID it was you know game changing for my life actually. Either if I'll say पहले तो lows में, because that time I took a decision for the separation with my husband. So that was the lowest point in my life. And second one, I left my last company. So again, career-wise भी, you are shattered, you know. So both things happened together with me. One thing is in September and second is in October. So that's the same thing in 2020. Then I didn't do anything for next 1 year. I was doing the consultancy for the brands, but I was not getting the satisfaction because जिस level पर मैंने काम किया है, लोगों को समझ आता है कि no, this is not the way पूजा do. Because उनका मानना ये है कि पूजा जो भी करती है वो बहुत full perfect करती है. जो उसके concepts होते हैं वो होते हैं जो हमारी requirement है. When I launched foot facial तो लोगों को बड़ा अजीब लगा सुनने के लिए, but they said yes, that's पूजा only can do it. तो यहाँ थोड़ा टफ था. और जब आप खुद वो एंटरप्रेन्योर बनते हो तो बहुत ज़्यादा जर्नी टफ हो जाती है बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. आई हैव वन पार्टनर बट येस अ लॉट ऑफ वर्क्स यू नीड टू डू इट बिकॉज यहाँ हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग्स भी हैं. तो हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट नहीं करते हैं. वी आर प्राउडली मेड इन इंडिया एंड वेयर यू नीड टू यू नो सी द फैक्ट्री, लेबर, रॉ मटेरियल परचेज, पैकेजिंग एंड उसके बाद प्लेसमेंट्स, मार्केटिंग, यू नो sales, because you know very well marketing and sales is a different entity. लोगों को लगता है sales and marketing, no, it's not the same at all. So you need to work on the brands की brand popularity आप कैसे कर सकते हो. Then where you are placing the product, आप उसका awareness कैसे बढ़ा सकते हो. तो it is a tough journey, no doubt about it. But yes, I always believe when you are passionate, nothing is tough. Because I am not doing this because it's my job or it's my you know earning point. No, I am passionate for beauty industry. मतलब I can talk morning to evening 24 hours continuously on the skin. And if I'll show you sometime, I'll share my before and after when I entered in the industry, you will not believe it कि मैंने अपनी journey कहाँ से शुरू करी थी. And you say no, it's not you. So I always say without any peelings, without any chemicals, we can change the color. But yeah, it is a slow process because I was too dark and you know now you can see it's not black
तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट यू नीड टू फोकस ऑन इट. आपको मॉर्निंग इवनिंग रिजिम यूज करने हैं, देन 10 to 15 डेज में यू गो एंड टू टेक योर ट्रीटमेंट्स. बट या देयर इज नो रिक्वायरमेंट अ लॉट ऑफ पीलिंग्स और लॉट ऑफ काइंड ऑफ इंजेक्शंस व्हिच वी आर आज की डेट में अगर आप देखें तो यूथ इज गोइंग ऑन. So talk about youth only. Lots of youth look upon you as a role model. Yeah. When it comes to influencer also and a skin expert also. So what do you say? What do you advise them basically if they wanted to come into this industry or if they look upon skin care? So what is your advice? सी आई वॉन्ट कि बहुत मतलब ये इंडस्ट्री ना सबका वेलकम करती है, हाथ मतलब कहते हैं एक बड़ी सी बाहें फैला के आप सबके लिए. बट येस आई रियली सजेस्ट यू इफ यू आर पैशनेट फॉर दिस इंडस्ट्री देन कम इन द इंडस्ट्री. अदरवाइज इफ यू आर कमिंग नहीं कि जस्ट मैं ये ट्राई कर लेता हूँ तो मे बी यू विल नॉट एंजॉय दिस इंडस्ट्री. दिस इंडस्ट्री विल गिव यू अ लॉट ऑफ लव इफ यू आर डूइंग रियली गुड. मतलब दे विल यू से कि ओ इट्स माई लाइफ नाउ. मतलब आप अगर मेरे जैसे 10 लोगों से मिलोगे तो वो यही बोलेंगे कि ये इंडस्ट्री it's our first love. So Pooja, now it's Women's Day is approaching. We have all women viewers who look upon you. So what do you advise them basically? क्या बोलना चाहेंगे इस वुमेन डे पर? ओके मतलब मुझे लगता है वुमेन डे पे सबसे पहला मेरा लोगों को सजेशन है अपने आप से प्यार करो. And you are the most beautiful creation of the God. मतलब being a woman होना ही अपने आप में एक बहुत proud feeling है. तो that's the only message. Just feel yourself, love yourself, pamper yourself. एक बात और, जैसे मान लीजिए बिजनेसेस आज की तारीख में इतने ज़्यादा टफ हो गए हैं, उसमें people are running from post to pillar and also they are after the rat race. How do you see yourself? क्या बोलना चाहेंगे उनको कि हेल्थ इज डिटोरेटिंग, कैन बी अ मेंटल हेल्थ, कैन बी अ फिजिकल हेल्थ. तो हाउ डू यू सी दैट द हेल्थ कैन बी बैलेंस्ड बेसिकली? आई एग्री विद यू बिकॉज इन लास्ट 1 year जर्नी आप मेंटल जरूर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हो. आई एग्री विद यू. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जर्नी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन पे काम करना चाहिए अपने लिए, जहाँ आप अपने ऊपर काम कर सकते हो. और सेकंड, जो आज की डेट में भाग दौड़ है एक दूसरे के ब्रांड्स को नीचा दिखाना है समथिंग ओ द ब्रांड डजंट हैव दिस, ये ब्रांड डजंट हैव दिस, माय ब्रांड डजंट हैव दिस. तो आई ऑलवेज प्रेफर एंड आई ऑलवेज वांट टू से कि मैं कभी किसी ब्रांड की बुराई नहीं करती हूँ. और मुझे लगता है एवरी ब्रांड हैज़ अ गुड प्रोडक्ट. अपने बच्चे को गलत शिक्षा कौन देता है? यू टेल मी वन थिंग. कोई नहीं देता, पर कभी कभी किसी के बच्चे गलत बन जाते हैं. तो सेम हर कंपनी जो अच्छा ही ब्रांड बनाती है, अच्छे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर. तो कभी किसी को अगर कोई एलर्जी हो जाती है तो दैट डजंट मीन कि प्रोडक्ट इज बैड. मे बी इट इज नॉट सूटिंग यू. तो इफ इट इज ए कॉम्पिटिटर ब्रांड तो आई विल नॉट से ओ दैट ब्रांड इज बैड. तो आई ऑलवेज से मे बी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ या अकॉर्डिंग टू द स्किन नहीं है ये प्रोडक्ट, और मे बी उन्होंने किसी और, उनकी जो मार्केट है वो अलग है. आप नीश मार्केट के लिए बना रहे हो या आप मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए बना रहे हो. बहुत सारी कंपनियां ना ये प्रोडक्ट बनाते समय कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हैं कि उन्हें किस मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना है. बिकॉज इफ आई से नीश मार्केट जो कि एसी से बाहर ही नहीं निकलते हैं, हर समय कार में घूमते हैं, तो दे डोंट फील अ लॉट ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस. तो उनकी स्किन पर बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट जाता है बिकॉज देयर स्किन इज वेरी सेंसिटिव. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास फैमिलीज, दे गो इन द सन ऑल्सो, दे केयर द स्किन बट देयर स्किन इज लिटिल बिट टफ. तो उनके लिए हम अलग सेगमेंट में प्रोडक्ट रखते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द जो वॉल्यूम गेम है मासेस का है, अगर आप वहां बनाना चाहते हो तो फिर सेंसिटिव वाला तो वहां काम ही नहीं करेगा. उन्हें लगेगा कि आपके प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल. तो इट शुड बी, आई ऑलवेज फील कि आपके क्लाइंटेज के अकॉर्डिंग यू शुड डिजाइन द प्रोडक्ट. उसी हिसाब से आपको ब्रांड करना चाहिए, उसी हिसाब से उसकी प्लेसमेंट्स करनी चाहिए मार्केट्स के अंदर, सो यू कैन रियली रन योर बिजनेस वेरी वेल. So since you're a single mother and Mother's Day is coming, so lots of viewers are they are mother and they're going to be mother. Yeah. So any message which you want to convey? Enjoy your motherhood. I say this is the best
feeling in the world when you come from business to home, you know, and your आपका बेटा आता है भाग के and they hug you like ना, ओ मम्मा आपने खाना खाया था, you know. I always feel I'm enjoying my motherhood. और जिन लोगों को लगता है ओ माँ बनने के बाद you know ये बंधन नहीं, no 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 not at all. आप बाहर से कितना भी थके हुए आओ, I always feel एक ही इंसान है जो आपकी थकान सिर्फ एक हग से निकाल सकता है, that is your son or daughter. तो सच से मदरहुड. 3 चीजें you always carry when you're traveling abroad. सी एक लड़की से ये क्वेश्चन बहुत खराब है. 3 चीजों का क्या मतलब होता है, और वो भी स्किन केयर और मेकअप में. नो 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 नो, दैट इज अ रियली रॉन्ग क्वेश्चन फॉर द गर्ल. इफ आई नीड टू चूज, सब चीजें अगर खत्म हो रही हो और एक प्रोडक्ट चुनना हो तो मुझे दैट विल बी माय सनस्क्रीन. अच्छा, okay. या So one word for Pooja Garg. आई लव माई सेल्फ. No, there's a one. We didn't ask for a sentence. One word we are talking about. नो आई कैन नॉट से वन वर्ड बिकॉज आई ऑलवेज से कि मैंने अपनी जर्नी बहुत टफ निकाली है. अभी ठीक है, एवरीथिंग इज सेटल, बट येस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन 2000 व्हेन आई कंप्लीटेड माय कोर्स, आई बिलोंग टू वेरी 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 लोअर मिडिल क्लास फैमिली. मतलब इट वाज रियली टफ टू पे फीस फॉर माय कोर्सेज. एंड मुझे याद है मेरे भाई ने अपनी ट्यूशन नहीं की थी CA की बिकॉज ही वांटेड टू पे मनी फॉर माय कोर्स. तो इट वाज टफ. एंड आफ्टर 12th आई डिडंट takes a single rupees from my family. So that is my earning and I am a self-made person. Okay, so you travel a lot. Yeah. Okay, and when you go out of Delhi or out of India, what do you keep always in mind? Like in business, you network a lot or you meet people a lot. How do you increase your business? How do you expand your business? Basically? They should be protective. मेरा सबसे पहला ये होना चाहिए, चाहे मैं एक ही क्लाइंट से मिलूं, but it should be प्रोडक्टिव बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया है उस क्लाइंट के ऊपर. आप जा रहे हो घर से बाहर, यू नो, फ्लाइट टिकट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी देयर. तो मैं अपनी हमेशा कॉल्स प्रॉपर फिक्स करके जाती हूँ. और बाहर जाने के बाद मेरा जो सबसे पहला थिंग होता है कि मैं उसको ब्रांड के बारे में अवेयर कर पाऊँ और जो उसके ब्रांड को रिक्वायर्ड है सिर्फ वही मैं प्लेसमेंट करूँ. क्योंकि जो आपकी ज़रूरत है ना वही आप समझा सकते हो. अगर मैं उनको सब कुछ समझाऊंगी तो दे विल नॉट वर्क. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर माई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बिकॉज मेरी जो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए रहती हैं. तो जब हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाते हैं तो 2-3 चीज़ें ज़रूर आपके लिए प्रॉब्लम्स करती हैं बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन फॉर द अकाउंट्स, यू नो, देन फॉर मार्केटिंग, देन फिर सेल्स. पहले टेक्निकल विल अप्रूव द प्रोडक्ट, फिर वही थोड़ा सा आपसे बार्गेन मार लेंगे डिस्काउंट्स में. व्हेन यू विल सिट इन विद द CEO देन दे विल आल्सो स्टार्ट विद द डिस्काउंट स्ट्रक्चर. देन व्हेन यू विल कम इन द अकाउंट्स टीम दे विल अगेन स्क्वीज यू. तो आई थिंक कि दिस इज अ रियली टफेस्ट थिंग. बट अदरवाइज यार जब भी मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई टू बुक माई अपॉइंटमेंट कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो. What is a vision in life? Vision and mission. विजन मेरा ये है कि मैं अपने ब्रांड को इतने हाइप पर लेकर जाऊं कि लोगों को समझ, और मैं मतलब सिर्फ नॉट मनी में, कि लोगों को समझ आए कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का वो मैं किस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ. और एटलीस्ट इंडिया की 50% पॉपुलेशन मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हो. Very nice, very nice. That's really great, and we hopeful that vision will definitely fulfill in your lifetime. So thank you for coming in Tycoon Global podcast. So here we have Pooja Garg, and we have more stories coming up in Tycoon Global podcast. Thank you. Please subscribe Tycoon Global Media.